اور اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کے حدود میں کئی کنٹینمنٹ علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں کرونا وائرس کی بڑھتی وبا پر قابو پانے کے لیے محکمہ فائر سیفٹی کی جانب سے ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ سکندرآباد کے علاقے بیگم پیٹ، رسول پورہ علاقوں میں کئی کنٹینمنٹ زونز ہیں۔ اس کے علاوہ گرین لینڈز، پرکاش نگر، پولیس لائن علاقوں میں بھی کنٹینمنٹ زونز ہیں۔ ان علاقوں میں محکمہ فائر سیفٹی کی جانب سے ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ کرونا وائرس کی بڑھتی وبا کے باوجود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صفائی ملازمین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ غزل سنگر ڈاکٹر سروپا ریڈی نے صفائی ملازمین کی خدمات کو تہنیت پیش کرتے ہوئے صفائی ملازمین اور کرونا وائرس پر ایک گانا ترتیب دیا ہے۔ ریاستی وزیر تلسانی سرینواس یادو کے ہاتھوں آج افتتاح عمل میں آیا۔ اس دوران صفائی ملازمین کو ریاستی وزیر نے شال پوشی کی اور انہیں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا۔ کسانوں کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات پر کسان برادری نے خوشی کا اظہار کیا۔ سنگاریڈی ضلع کے کنڈاپور منڈل میں کسانوں نے وزیر اعلیٰ کے KCR کے پوسٹر کو دودھ سے نہلایا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت نے کسانوں کے لیے ریتو بندھو اسکیم شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ KCR نے لاک ڈاؤن کے دوران چند دن قبل کسانوں کا قرض معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کسان تنظیموں کے ذمہ داروں نے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ حیدرآباد کے علاقے نامپلی کے مختلف کالونیز میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ہمایوں فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس دوران سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھا گیا۔ حلقہ نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج تقریباً 800 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ بلا کسی مذہب و ملت تمام خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ سالار ملت ٹرسٹ کی جانب سے راشن کی تقسیم عمل میں آئی۔ چل رہا ہے اس دن سے مسلسل عوام کے درمیان میں رہ کے عوام کو نہ صرف راشن کٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے بلکہ جہاں ضرورت ہے وہاں پر کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ تو آج اللہ کا کرم ہے کہ حبیب ملت نے 3 پروگرام نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں اپنی جانب سے دیا ہے اور انہوں نے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے جو کٹس ہے وہ لا کے یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، جس میں پہلا ایم جی نگر جو احمد نگر ڈویژن میں آتا ہے وہاں پہ دلت ایریے کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے تمام دلتوں کو یہ راشن کٹ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام تھا ریڈلز گراؤنڈ کے اندر، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر بھی ریڈلز گراؤنڈ کے اندر بھی یہ کٹ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ اب یہ تیسرا پروگرام انجمن آصف نگر دیندار انجمن کے اندر ہے، یہاں پر بھی حبیب ملت نے اپنے ہاتھوں سے راشن کٹ کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے۔ یہ اللہ کے کرم سے آج تقریباً 800 سے زیادہ راشن کٹ 3 ایریوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے شاہین نگر، وادی صالحین اور دیگر علاقوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ مقامی خاندانوں کے علاوہ بیرون ریاست کے لیبروں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ سید عبدالرؤوف اور ان کی ٹیم کی جانب سے راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تب سے آج تک تقریباً 1200 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے 1270 فیملیز میں ریشن کٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس میں جو ہے جناب امجد اللہ خان صاحب کی طرف سے جو ہے 500 فیملیز کو جو ہے ریشن کٹس دیے گئے شاہین نگر کے اطراف اکناف کے علاقوں میں، اور ماباقی جو ہے اہل خیر حضرات کی جانب سے اور ہمارے فرینڈ سرکل کی جانب سے جو ہے دیے گئے۔ نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھا، نہ بارش دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی۔ الحمدللہ جو ہے گھروں پر جا کر ہمارے ساتھ جو میرے ساتھیاں ہیں پورے مل کر ہم نے جو ہے ان کو گھروں پر جا کر ٹوکن دیے، ہم نے مکمل تحقیقات کر ٹوکن دیا، پھر دوسرے دن جو ہے ان کو راشن دیا۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ آگے بھی جو ہے جب تک یہ لاک ڈاؤن باقی رہیں گا انشاءاللہ شاہین نگر اور جلپلی میونسپلٹی کے اطراف اکناف علاقوں میں ہم جو ہے یہ ہمارا سلسلہ جاری رہیں گا انشاءاللہ تعالی۔ بیرون ریاست کے مزدوروں کا تلنگانہ کی ترقی میں اہم رول رہا ہے۔ TRS لیڈر کرشانت نے بیرون ریاست کے مزدوروں کو روزگار کی غرض سے تلنگانہ لانے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بیرون ریاست کے مزدوروں کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ मुख्यमंत्री KCR जी मानते हैं कि ये प्रवासी श्रमिक तेलंगाना के विकास के साथी है और इसी कारण यहाँ पे क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र में इस बार धान का उत्पादन 1 करोड़ टन हुआ है और तेलंगाना सरकार किसानों से हर धान का एक एक दाना खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण हमें राइस मिलों में संख्या कम है। प्रवासी श्रमिकों को गुजारिश किया गया है, बिहार सरकार के साथ गुजारिश किया गया है कि उन
प्रवासी श्रमिकों को यहाँ पे भेजे। आज हमारे अधिकारियों ने उनको स्वागत किया है, पूरे राष्ट्र भी स्वागत करते हैं और प्रवासी श्रमिकों को हम वादा करते हैं कि तेलंगाना राष्ट्र का हर एक जनता उनका आदर करेगा कि वो हमारे विकास के भागीदारी है और साथी है। हैदराबाद के मुदाफाती इलाके कुशाईगुड़ा में बैरून रियासत के मजदूरों ने एहतजाज किया। आबाई मकाम को रवाना करने का मुतालबा करते हुए सैकड़ों मजदूरों ने सड़क पर धरना दिया। इस दौरान बरहम मजदूरों ने सड़क पर लकड़ियां डालकर रास्ता बंद कर दिया, जिसके सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। एहतजाजी मजदूरों का कहना है कि वो गुज़श्ता कई दिनों से आबाई मकाम रवाना करने का मुतालबा कर रहे हैं। बावजूद इसके मकामी ओहदेदार मसाइल पर तवज्जो देने से खासिर हैं। बैरून रियासत के मजदूरों ने मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। और कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बगैर सफाई मुलाजिमीन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में उनके लिए एक गाना भी तरतीब दिया गया है, जिसका इफ्तिताह श्रीनिवास यादव के हाथों हुआ है। పారిశుద్ధ్య వీరులార మీ సేవకు ప్రణామాలు, ధరణిలోని ధీరులార చరణాలకు చందనాలు, ఉషస్సునే అందించే తండ్రులు మీరు, మలినాన్నే తొలగించే యోగులు మీరు, స్వచ్ఛతనే నేర్పించే గురువులు మీరు, పారిశుద్ధ్య వీరులార మీ సేవకు ప్రణామాలు, ధరణిలోని ధీరులార చరణాలకు చందనాలు. చీపురుతో చెలిమి చేసి చెత్తనంత ఊడ్చేసి, డస్ట్బిన్లు ఖాళీ చేసి దుమ్ము ధూళి దులిపేసి, నాలల్లో పేరుకున్న మురికినంత గుంజేసి, కాలువలను అడ్డుకున్న కచరనంత తీసేసి, వానలలో వరదలలో ముందడుగులు వేసేసి, రోడ్లపైన నిలిచి ఉన్న మురికి నీరు ఎత్తేసి, ప్రజలందరి ప్రాణాలకు రక్షకులై భువినాథున విలసినారు దేవతలై. పారిశుద్ధ్య వీరులార మీ సేవకు ప్రణామాలు, ధరణిలోని ధీరులార చరణాలకు చందనాలు. और भाई रुख करते हैं आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे हैं केसेस। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,388 मुश्तबा अफराद का किया गया टेस्ट, 43 नए मामले हुए दर्ज। एलजी पॉलीमर्स कंपनी के बाहर मकामी अवाम का एहतजाज, कंपनी को शहर के बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा, पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान कशीदगी। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने केजीएच अस्पताल का किया दौरा, गैस सानहे के मुतासरीन से की मुलाकात, आला सतही जांच का मरकज से किया मुतालबा। करनूल और अदुनी में रमजान राशन तकसीम, अल-जवाद ट्रस्ट की जानिब से आइम्मा और मौज़नीन के अलावा 300 मुस्तहिक़ खानदानों में राशन तकसीम किया गया। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस रोज बरोज पांव फैलाता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 8,388 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 43 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। इस तरह रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 1,930 हो गई है और कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 44 को पार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कृष्णा जिले में सबसे ज्यादा 16 मामले दर्ज हुए हैं। एलजी पॉलीमर्स कंपनी को शहर के बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए मकामी लोगों ने एहतजाज किया। आरआर वेंकटपुरम इलाके के अवाम ने एलजी पॉलीमर्स कंपनी के बाहर एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत एलजी पॉलीमर्स कंपनी के साथ साजबाज करते हुए आवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है।
पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एक जानब पुलिस एहतजाजियों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि दूसरी जानब इंसाफ का मुतालबा करते हुए जहरीली गैस आने के मुतासरीन ने LG पॉलीमर्स कंपनी के बाहर एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान कशीदगी देखी गई। आंध्र प्रदेश के DGP गौतम सॉन्ग ने आज LG पॉलीमर्स कंपनी का दौरा किया। DGP के दौरे के पेश नज़र आज सुबह से ही LG पॉलीमर्स के बाहर मकामी अवाम का एहतजाज जारी था। मुतासरीन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए लाशों के साथ LG पॉलीमर्स कंपनी के बाहर एहतजाज किया। मुतासर अफराद के रिश्तेदारों ने DGP से इंसाफ की मांग की, साथ ही इस कंपनी को शहर के बाहर मुंतकिल करने की अपील की। Investigation, the matter is still under investigation, so I will not be able to comment or say anything on that because adi enquiry order చేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా వచ్చారు ఇక్కడ ఆ రోజు. చీఫ్ సెక్రటరీ మేడం కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. అందరూ రివ్యూ చేస్తున్నారు. కమిటీ has been set up. కమిటీ కూడా they are coming here. So they will also take the expert technical inputs అది తీసుకొని దీని గురించి విచారిస్తారు. Situation on the ground, and we did a quick discussion with all the technical team here who are on the ground, and we see that situation is absolutely under control. All that reactions and the leakages have been plugged. It is checked, so there is no matter of concern anymore, and we are also having further more technical teams coming and arriving from Delhi. But as of now, everything is under. LG पॉलीमर्स गैस आने से मुतासर मरीजों की तेलुगुदेशम लीडरों ने इयादत की। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडरों ने आज KGH अस्पताल पहुंचकर मुतासरीन से बातचीत की। अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों से बातचीत करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। तेलुगुदेशम सीनियर लीडर अच्छा नायडू ने मकाम हादसा का दौरा न करने पर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस पूरे वाक़े की जामे जांच का मरकज़ से मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने इस वाक़े में मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की। లక్షలాది మంది ప్రజలు ఈ గ్యాస్ బారిన పడిన సంఘటనని ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. చనిపోయిన వాళ్ళకి ₹1 కోటి ప్రకటించారు, సంతోషం. వెంటిలేటర్ల మీద ఉన్న వాళ్ళకి 10 లక్షలు కేటాయించారు, సంతోషం. గ్రామాల్లో ఎవరైతే ఈ 5-6 గ్రామాలు ఉన్నారో వారికి ₹1,00,000 చొప్పున ప్రకటించారు. నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి అడుగుతున్నాను, ఇది మీ ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చినటువంటి పరిహారమా లేకపోతే కంపెనీ నుంచి ఇచ్చే పరిహారమా తెలియచేయాలి. ఈరోజు ఆ పరిశ్రమను తొలగించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం సమగ్రమైనటువంటి దర్యాప్తు జరపాలి. నిన్న మొన్న వింటున్నాం, రైటో రాంగో తెలియదు, ఈ పార్టీకి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు ఒత్తిడి వల్లే ఇది తెరిచారని. ఎందుకంటే వారి పరిశ్రమలకి రా మెటీరియల్ కావాలి కాబట్టి, ఆ రా మెటీరియల్ ఇక్కడే తయారవుతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వంలో సహకారం ఉన్నటువంటి కొంతమంది పెద్దల సహకారంతో దీనికి తెరిచినట్టుగా కొన్ని వార్తలు వస్తున్నాయి. అవి వాస్తవమా అవాస్తవమా మనకు తెలియదు. विशाखा के LG पॉलीमर्स सान्हे की मुकम्मल जांच का मुतालबा करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म को एक मकतूब तहरीर किया। उन्होंने कहा कि यह हादसा क्यों पेश आया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सिर्फ स्ट्रेन गैस लीक हुई या कोई और जहरीली गैस लीक हुई है, इसकी मुकम्मल जांच का उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कड़े इक़दाम की भी अपील की है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस हादसे के बाद से अवाम खौफज़दा है। I am giving a suggestion to the government of Andhra Pradesh and Chief Minister Jaganmohan Reddy ji. Giving money is not solving the problems. पॉलीमर्स गैस आने पर अफसोस का इजहार किया। रियासती कांग्रेस पार्टी के सदर शैलजा नाथ ने कहा कि मुतासरीन को एक्स ग्रेशिया देना मसले का हल नहीं है। उन्होंने इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। I am giving a suggestion to the government of Andhra Pradesh and Chief Minister Jaganmohan Reddy ji. Giving money is not solving the problems.
the gas leakage from that LG company Sterling, it is a poisonous gas which is spreading into the air. It is going to pollute water and air and everything there. Everybody knows this, even trees also the affected for with that. People are scared. First of all, how you allow a factory not having any permission, any clearances from the environmental department or anything else? At the same time, who is going to be? विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर लोना सेंटर इलाके में कोरोना के पॉजिटिव केस ज्यादा पाए गए हैं, जिसकी वजह से ओहदेदारों ने कई रेड जोन इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हुए आवाम को घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया। मकामी ओहदेदारों ने आवाम से अपील की कि वो इमरजेंसी हालात में ही घरों से बाहर निकलें, गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मकामी वॉलंटियर्स से खिदमात हासिल करने का मशवरा दिया। विजयवाड़ा में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके सबब कई इलाकों को रेड जोन और कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील कर दिया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि शहर के 20 से ज्यादा इलाकों को रेड जोन और बफर जोन में तब्दील कर दिया गया। अब तक शहर में 300 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में 11 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए। ओहदेदार आवाम से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की अपील कर रहे हैं। लॉकडाउन के पेश नज़र मार्बल का काम करने वाले मजदूर हैदराबाद से उड़ीसा साइकिल पर सफर कर रहे हैं। इतवार को 12 नौजवान साइकिल पर हैदराबाद से उड़ीसा के लिए रवाना हुए। अब ये नौजवान विजयवाड़ा पहुंच गए हैं। अभी 750 किलोमीटर का फासला तय करना है। इन नौजवानों ने बताया कि एक जानिब लॉकडाउन, दूसरी जानिब खाने और रहने की परेशानी के सबब ही उन्होंने साइकिल पर आबाई मकाम जाने का फैसला लिया। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए उन नौजवानों ने बताया कि दिन में धूप की शिद्दत के सबब वो रात के औकात में ही सफ़र कर रहे हैं। कब स्टार्ट हुआ हैदराबाद में? संडे को। किधर जाते हैं? उड़ीसा जा रहे हैं। उड़ीसा। कितना आदमी आया आप? 12 आदमी। खाना पीना अभी तो दुकान बंद है। हाँ, अभी जिधर मिलता है थोड़ा बिस्कुट, नहीं तो और केला किधर मिलता है ओके। खा के जा रहा है। सोने का तो सुबह धूप हो रहा है, उधर भी किधर देखेगा पेड़ फिर देख के थोड़ा बैठ के रेस्ट ले रहे हैं। मार्बल का। अभी किधर से आते हो? हैदराबाद से। और किधर चल जाते हैं अभी? भुवनेश्वर उड़ीसा को। कितने आदमी आए आपको? 12 आदमी। कितने किलोमीटर थे हैदराबाद से उड़ीसा को? 1200 होते। करनूल जिले के कदीम शहर अदुनी में मुस्तहक खानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। अल-जवाद ट्रस्ट की जानिब से राशन तकसीम किया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने बताया कि पिछले कई सालों से फलाही काम जारी है। आज शहर के 50 आइमा मौज़िनीन के अलावा 300 पसमानदा और गरीब खानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। रमज़ान राशन में 25 किलो चावल के अलावा आटा, दाल, तेल और दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल हैं। वेलफेयर ट्रस्ट का ईयरली इवेंट रमज़ान इमदाद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है आज। इस प्रोग्राम के दौरान आधुनी के तमाम मसाजिद के मुअज्जिन तकरीबन 50 लोगों को राशन किट तकसीम किया गया है। इस राशन किट का कंपोजिशन 25 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल और 1 केजी खजूर है। मुअज्जिन के अलावा और 300 फैमिलीज़ को जो कि गरीब तबके के लोग हैं उनको भी राशन किट्स तकसीम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के दौरान मैं अल-जवाद वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर्स और कंट्रीब्यूटर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस माह मुबारक रमज़ान में सब लोग दुआ करें कि इस कोविड-19 बीमारी को अल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म करे। करनूल के इलाके जहरापुर में वाक़ मदरसे जामे तैयबा की जानिब से राशन तकसीम किया गया। मदरसे की जानिब से 350 मुस्तहक खानदानों में राशन तकसीम किया गया है। मदरसे के ज़िम्मेदार मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने बताया कि लॉकडाउन के सबब कई अफराद रोज़गार से महरूम हो गए हैं। इस इलाके में गरीब खानदानों की तादाद ज़्यादा है। इनकी मुश्किलों को देखते हुए मदरसे की जानिब से 350 मुस्तहक खानदानों में राशन की तकसीम अमल में लाई गई।
मदरसा दोनों की कमेटी मिलकर एक दर्द अपने दिलों में रखकर खड़ी हुई और आपस में चंदा इकट्ठा किया। बहुत सारी जगहों से बहुत सारे दर्द रखने वालों ने दिया। चुनांचे हम आगे खड़े हुए और 350 किटों पर मुश्तमिल हमने राशन को तैयार किया और तकसीम किया। और ये रकम जो भी है नौजवानों की इकट्ठा की हुई है। 20 दिन पहले भी 100 किटों को हमने तैयार किया था, तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मुनज़्ज़म तरीक़े से बहुत डिसिप्लिन के साथ हुआ था। और उसके थोड़ी 20 दिन के बाद एक बहुत बड़ा काम जो तकरीबन 300 से ज़्यादा किटों पर मुश्तमिल है, तो इसको देखकर बातें कह रहे हैं कि पता नहीं कि ये लोग रकम कहाँ से ला रहे हैं। अल्लाह गवाह है कि सब चंदा की हुई और इकट्ठा की हुई रकम है। किसी के पास से जाकर मुस्तकिल कोई हमने नहीं लिया और न इसको हमने अपनी ज़ाती माल में खर्च किया। और जो दूसरे महल्ले के हैं, ओल्ड टाउन के हो या न्यू टाउन के हो, जितने भी हैं, हर एक महल्ले को टारगेट बनाए, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, दोनों को साथ रखे। तो इसलिए ये इंसानियत का दर्द अपने अंदर रखे। और एक बात ख़ास तौर पर याद रखे कि ये जो हमने तकसीम किया, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों में हमने तकसीम किया है। करनूल शहर के काजी मुफ्ती अब्दुल कासमी ने आइम्मा मौज़िनीन हुफ़ाज़ को इमदाद फराहम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के सबब कई अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। कौम के रहबर आइम्मा मौज़िनीन भी मुश्किलात से दो चार हैं। मसाजिद और कारोबार बंद होने की वजह से इन्हें भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर काजी ने कौम के रहनुमाओं का ख्याल रखने की आवाम से अपील की। महामारी कोरोना वायरस आया है, तब से लोग अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों की मदद कर रहे हैं। वो काबिल तहसीन है, बहुत मुबारकबाद है उनको। मगर हम दो तबक़ों को भूल गए हैं। पहला तबक़ा उलमा और हुफ़्फ़ाज़ का है। ये उलमा का और हुफ़्फ़ाज़ का ही तबक़ा ऐसा है जो दीन का मुहाफ़िज़ था, है और क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो कोई भी उलमा की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं, हुफ़्फ़ाज़ की तरफ तवज्जो नहीं करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दे रहे हैं और भी देना चाहिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मगर हज़रात उलमा का भी ख्याल करें, हुफ़्फ़ाज़ का भी ख्याल करें, इसी तरह सैयदुस सादात का भी ख्याल करें। सहादात आले रसूल हैं, सादात को ज़कात ना दें, उलमा वगैरह को ज़कात ना दें, आले रसूल हैं सादात। उलमा का, हुफ़्फ़ाज़ का और सादात का ख़ास तौर पर ख्याल करें और इन लोगों के घरों तक पहुंचकर देने का भी तरीक़ा, मेरे हाथों की तरफ देखें, इस तरह हाथ में रख के पैसा उनको लेके जाकर इस तरह दें। सैयदुस सादात को, उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को ये कहें उनसे कि आपका हाथ ऊपर ही रहें, ऊपर से ले लें, आपका हाथ नीचे आने ना पाएँ। तो उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और सैयदुस सादात ये उम्मत का कीमती सरमाया है। इस सरमाये को हम भूल चुके हैं। इसलिए इस महामारी के ज़माने में अपना पाक माल ले जाकर उनके घरों तक पहुँचा। और आंध्र प्रदेश से तकरीबन 500 से ज़्यादा अफराद मुक़द्दस सफ़र काशी के लिए गए हुए थे। लॉकडाउन के पेश नज़र वो तमाम अफराद वहीं पर फंस गए थे। इन अफराद में 9 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तंजीम मुस्लिम हुकूक़ के सदर फारूक शिबली ने काशी का दौरा करने वाले तमाम अफराद से कोरोना का टेस्ट करवाने की अपील की। साथ ही उन्होंने हुकूमत से भी तमाम अफराद का टेस्ट करने की अपील की। उन लोगों को 9 लोगों को जो है, मतलब 8 लोग और एक ड्राइवर, इन सब लोगों को जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया है। आज के सारे अखबारात में मौजूद है। तो मैं अबदन गुजारिश करता हूं हुकूमत आंध्र प्रदेश से कि जितने भी काशी को जाकर आने वाले जितने भी यात्री लोग हैं, इन सब का जो है डिटेल्स दिया जाए और इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं, इन सब लोगों को जो है इमीडिएटली क्वारंटाइन सेंटर्स को जो है भेजा जाए। और उसी के साथ साथ हम अपील करते हैं जितने भी काशी को जाके आए हैं लोग, वो सब के सब जो है इंडिपेंडेंट होने वो आगे बढ़े और आकर जो है अपना कोविड का टेस्ट करवाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।